गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब उससे पहले मैंने जो भी पढ़ा है अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करिए, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नाउ गाइस, द नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर फॉर द 10th स्टैंडर्ड। सो एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? विच टर्म्स ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, यानी ये एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या आता है ये हमको पता करना है। और हिंट यहाँ पे दिया, फाइंड एन फॉर an इज लेस देन 0, मतलब an का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव नंबर ही होता। सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस just I will write here the given values. Given AP is given here 121, 117, 113 so on. So A कितना है यहाँ पे 121 है, D कितना है A2 माइनस A1, 117 माइनस 121, so D is equal to -4। n नहीं है हमारे को तो n पता करना है। अब अप्लाई वो करना है, an is less than 0, an is less than 0, so what is the an? We know that a plus n minus 1 into d less than 0, so a is 121 plus n minus 1 because n value is not there, so n as it is. D is -4 into -4 less than 0. Just multiply by the -4 into the bracket terms and open 121, then 4 into n is 4n, minus into plus minus, next 4 into 1 is 4, minus into minus plus, less than 0. Add these two because both are the positive, it becomes 125 minus 4n less than 0. Take this from the right hand side, minus 4n less than minus 125, minus minus get cancel, so n is less than 125 divided by 4. So n is less than, we just multiply after we just divide this one, 4 ones are 4, 4 3s are 12, next 4 ones are 4, then point remaining is 1, so 4 2s are remaining 1 means at the 0 that is 10, 4 2s are, then remaining is 2 that is 4 5s are. So 31.25. okay, so after taking its value 31.25, but n value is in a positive integers, but here what in a decimals, so we should take here its successor numbers. okay, इसका अगला वाला नंबर लेना है। इसका पिछला वाला नंबर क्या होता 31 होता और इसका अगला वाला 32 होता। so we should take here n is equal to 32 लेके देखेंगे, 31 भी लेंगे आता है ना चेक करने के लिए, पर 32 ही आता। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इट्स nth टर्म्स। नाउ an is equal to a plus n minus 1 into d, a32 is equal to a means 121 plus n is 32 minus 1 and d is -4, so 121 ये कितना हो जाएगा प्लस 31 into -4, so 121 multiply this one, this plus into minus minus 4, and when we multiply here 124, so after subtraction that is the -3, this is the a32. Similarly if it is n is 31, so an is equal to a plus n minus 1 into d, a31 is equal to 121 plus 31 minus 1 into d is -4, so 121 अभी माइनस किए तो 30 हो जाता, 30 इंटू -4, so 121 प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ये मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन दैट इज द प्लस। ओके, 31 अगर हम ले रहे तो उसका वैल्यू क्या आ रही पॉजिटिव आ रही, 32 लिए तो
इसका वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. सो दिस इज -3 is the first negative terms. Okay, what asking here? First negative terms. So first negative term is -3 if n is 32. अगर n 32 लिए तब -3 आ रहा. Now the guys, next question in the exercise 5.4, second question, arithmetic progressions. What asking here? The sum of the third and the seventh terms of an AP is 6. Means what? AP का थर्ड और सेवंथ टर्म्स का सम 6 है एंड देयर प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा, 8 आ रहा. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP. Means yes, 16 we have to find out. So for solving these questions, first write down the given values. Solution given, what is given? A third terms plus A कौन सा टर्म है, 7 टर्म इज इक्वल टू 6. और क्या दिया, दोनों का प्रोडक्ट A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8. क्या पता करना है हमको, यस 16, सम ऑफ द 16 टर्म्स पता करना है. सो नाउ अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A3 मीन्स A प्लस 2D लिख सकते हैं, प्लस A7 मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल टू 6. नाउ सॉल्व दिस वन, AA दैट इज द 2A plus 8D is equal to 6. What is the common here? 2 is the common. So A plus 4D is equal to 6. 2 ones are 2 3s are. So A plus 4D is equal to 3. This is the equation 1. फिर इसको और सॉल्व करेंगे. A is equal to 4D को इधर लाएंगे 3 minus 4D, क्योंकि ये वैल्यू बाद में हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, नाउ हियर A3 into A7 means A3, the same thing we have to write down, A plus 2D into A7, A plus 6D is equal to 8 for this one. Now substitute the value of A in this one. Okay, या फिर इक्वेशन नंबर हम इसको 2 भी ले सकते. Substitute A in equation number 2 we get A का जो वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो A इज हाउ मच हियर, 3 minus 4D plus 2D, then A value is here, A value is 3 minus 4D plus 6D is equal to 8. Now solve here. 3 is as it is, then 4D and 2D means one is minus, one is plus. So minus 2D and this one is 3. Here also the sign is changed, means plus 2D is equal to 8. We observe this one. This is in the form of A plus B, A minus B. Okay, you know that A plus B, A minus B means A plus B, A minus B is equal to A square minus B square. So वो फॉर्म में हम लिख सकते. So that is 3 square minus 2D whole square is equal to 8. Now this is the 9 minus, when you open this one, 4D square is equal to 8. अब 9 को इधर लाएंगे, minus 4D whole square is equal to 8 minus 9. Minus 4D is equal to 4D square is equal to minus 1. Minus minus cancel. Now next one is D square and 4 write down from the denominator, cross multiply. So D square is equal to 1 divided by 4 and D is equal to, write this in a under root of plus or minus under root of 1 divided by 4. Okay, is equal to plus or minus. Taking outside, D is equal to plus or minus 1 divided by 2. So D is what, 1 by 2 or minus 1 by 2. So this D value we have to substitute in the equation 1 or 2. We get the value of A.
अब हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू, डी का दो वैल्यू है यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2, ये क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, मैंने रफ कर दिया, यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ये था इक्वेशन नंबर 1। अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट d इन 1 वी गेट, ओके, सो 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। सो d क्या है, a प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। सो a प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, a इज इक्वल टू 1। अब और एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 1/2, ओके, और d is the value minus 1/2. So a plus 4 into minus 1/2 is equal to 3. 2 1s are 2 2s are. So a, ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 को इधर लाओ, 3 प्लस 2, a इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू आ रहे हैं, d के भी दो वैल्यू हो गए, a के भी दो वैल्यू हो गए। सो उसके अनुसार यस 16 के भी दो वैल्यू आते हैं हमारे पास। नाउ Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. So S16 डिवाइडेड बाई 2, मैंने लिखा था फर्स्ट, यस 16 हमको पता करना है, तो n का वैल्यू कितना हो जाता है 16, 2 इंटू, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, d का वैल्यू ये ले रहे फर्स्ट वाला, और a का वैल्यू फर्स्ट ये ले रहे, ओके। सो 1 प्लस n is 16 माइनस 1 इंटू d इज 1/2। नाउ 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ये क्या कितना हो जाएगा, 2 प्लस 15 इंटू 1/2, सो 8, ये एलसीएम ले लो, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 15, सो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फाइनली 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई की, इसको ऐड करके बाहर ओपन करना है, सो दैट इज 19। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, सो यस 16 इज इक्वल टू 76। अब ये किसके अनुसार हुआ, d इज इक्वल टू 1/2 एंड a इज इक्वल टू 1। अब हमको क्या करना है, और एक वैल्यू है यहाँ पे, d इज द माइनस 1/2 एंड a इज द 5, ओके, तो उसके अनुसार हमको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रफ करूंगा, सो अब हमको लेना है a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1/2। द सेम थिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S16 इज इक्वल टू 16/2 2 इंटू, अब a 5 ले रहे हम, 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d इज माइनस 1/2। यहाँ पे 2 a है और 2 d है, सो दैट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ये होगा 8, ये मल्टीप्लाई किए 10 होगा, प्लस 15 इंटू माइनस 1/2, सो 8, ये एलसीएम ले लेंगे हम, 2 इज द एलसीएम, ये इधर इंटू होता 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 15, फिर इसको बाहर लाए तो ये कैंसिल हो जाता, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4, अब ये सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 मीन्स 5, मल्टीप्लाई वी गेट द 20, सो यस 16 इज द 20, सो देयरफॉर यस 16 इज 20 और यस 16 इज 76। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों भी आ सकता है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन गाइस इन द एक्सरसाइज 5.4 थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है, ए लैडर हैज द रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके। ये एक लैडर है, लैडर बोलते सीढ़ी है, उसके रंग्स हैं, ये स्टेप्स जो स्टेप्स आते हैं ना उसको रंग्स बोलते हैं, ओके। उसका डिफरेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन द लेंथ। अब रंग्स का लेंथ क्या हो रहा, हर स्टेप में यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा, ओके, एक लेवल से डिक्रीज हो रहा फ्रॉम द 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। सो बॉटम में 45 सेंटीमीटर है, टू द
टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप पे कितना है 25 सेंटीमीटर है। एट द बॉटम रंग्स आर 2 1/2 मीटर, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप इट इज 2 1/2 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये मीटर है ना, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड इज रिक्वायर्ड फॉर द रंग, मतलब ये रंग जो स्टेप्स के लिए जो वुड हमको यूज होती ना, सो ये पता करना है। ओके, सो दिस इज द यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस, इट मीन्स वी कैन टेक दिस वन इज द AP, हम AP ले सकते हैं इसको। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा A होगा, ये लास्ट वाला AN होगा। डिफरेंस बिटवीन द रंग्स इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज द D। ओके, फिर उसके बाद N एक पता करना है। सो द सॉल्यूशन इज, सो द बॉटम रंग्स, इसके लिए A आएगा 45 सेंटीमीटर्स, टॉप रंग्स दैट इज द टॉप के लिए AN आएगा। एक्चुअली दैट इज द लेंथ ऑफ द रंग्स। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू रंग्स, डिफरेंस बिटवीन रंग्स दैट इज द D, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमको N पता करना है, यहाँ पे हिंट भी दिया नंबर ऑफ द रंग्स, पर यहाँ पे सेंटीमीटर 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 है, पर ये कितना है मीटर है, तो मीटर को चेंज करेंगे। 2 1/2 मीटर मीन्स 2.5 मीटर। अब सेंटीमीटर में चेंज किए तो 2.5 इंटू 100 इट इज सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 250 सेंटीमीटर होगा ये। ओके, so this length divided by difference between the rungs plus 1. So number of rungs, that is the N, is equal to 250 divided by 25 plus 1. अब +1 क्यों आया, ये ध्यान में रखने वाली बात है, +1 क्यों आया। अब हम स्केल में देखते हैं, फ्रॉम 0 to 5, 1 2 3 4 5। ओके, यूनिट कितने आते हैं 1 2 3 4 5 यूनिट आते, बट मार्क कितने आते 1 2 3 4 5 6 आते। तो इसी प्रकार से यहां से यहां तक लेंथ कितना है 250 सेंटीमीटर है, बट मार्क कितने हैं, मार्क कितने आएंगे, एक ज्यादा आएगा, यूनिट के अनुसार एक ज्यादा आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज द +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, N इज इक्वल टू 25 1 जा एंड 0 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू द N। 10 + 1 is 11। नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, डायरेक्ट L ले सकते, AN के प्लेस पर हम L ले सकते है ना। सो यस 11 इज इक्वल टू दिस N इज द 11 डिवाइडेड बाई 2। A कितना है हमारे पास, A हमने लिखा है यहाँ पे 45 प्लस L कितना है, L कितना है, L इज द 25, L इज द 25। नाउ 11 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको ऐड करके बाहर लाएंगे, दिस इज द 70, 2 1 जा 235 जा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई हियर कितना होता 35 35, so 385। so therefore length of rungs is 385 सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर क्योंकि हम सारे सेंटीमीटर में ही लिए, तो अब इसके अनुसार मीटर में क्या होगा 3.85 मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशंस। ओके, अब जिसको भी लिखना है आप नोट डाउन कर ले सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इन द एक्सरसाइज 5.4. ओके, सो द हाउसेज ऑफ द रोज आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. हाउसेज हैं कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में 1 to 49 तक है, 1 2 3 4 5 ऐसे. शो दैट देर इज ए वैल्यू ऑफ द एक्स. उसके अंदर एक हाउस का नेम है एक्स है, उसका कुछ वैल्यू है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्ड ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउसेज, मतलब जो एक्स से पिछले वाले जितने भी हाउसेस हैं उसका सम हाउसेस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट. यानी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको हाउसेस 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू द 49. ओके, हाउसेस हैं, इसमें एक हाउस है एक्स, उसका कुछ वैल्यू है, तो इसके पिछले वाले नंबर्स यहाँ से यहाँ तक और उसके x के बाद वाले यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं इसका सम और इसका सम सेम है. तो हमको क्या पता करना है, x का वैल्यू पता करना है. फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x. सो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है. अब देखो ये नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 x आया. तो अब x से एक पिछला वाला नंबर क्या आता, इससे x से एक कम आता, सो दैट इज द x माइनस 1 है ना. अब अगला क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा ऐसे ही. सो फ्रॉम हियर टू हियर इज x माइनस 1. अब ये कितना आएगा, x ओनली. अब यहां से कितना आएगा, x प्लस 1 लाइक दिस वे. तो अगर हम यसन के अनुसार देखेंगे यहां से यहां तक कितना होगा, यस x माइनस 1 होगा. अब यहां से x तक अगर देखेंगे, x तक, सो यस x हो जाएगा. अब यहां से लास्ट तक अगर देखेंगे हम तो ये कितना होगा, यस 49 होगा. तो हमको ये पता करना है. सो ये कितना होता, दिस इज द फ्रॉम 1 to x इज एस एक्स एंड 1 to 49 इज यस 49. तो ये कितना होगा, यस 49 माइनस यस एक्स. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर equal. Understood? Now solution. What is given here? Given consecutive numbers. In the consecutive numbers, that is the 1 2 3 4 5 like this. Okay, 1 to 49, 1 2 3 up to the 49. So here a is equal to 1, d is also equal to 1. So this is the hint here that we have to apply. Yes, x minus 1 is equal to yes 49 minus s x. अब हमको n यहाँ पे x माइनस 1 लेना है, यहाँ पे 49 लेना है, यहाँ पे x लेना है. इसको सॉल्व किए तो आंसर आता है. वी नो दैट Sn फार्मूला n by 2. व्हाट इज द n हियर, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2a, 2 इंटू a इज 1 प्लस n माइनस 1, n ये है सारा, x माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1 का और एक ये माइनस 1 इंटू d इज 1 इज इक्वल टू 49. सो n इज द 49, 49 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a इज द 1 प्लस n इज द 49 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d इज 1. नेक्स्ट एस एक्स, सो माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 plus x minus 1 because n is the x into 1. Now open the brackets. Here x minus 1 divided by 2, so 2 ones are 2 plus minus 1 is minus 2 into 1 is minus 2 only, x minus 2. So 49 divided by 2, 2 ones are 2 plus 49 minus 1 is 48, 48 into 1 is only 48 minus x divided by 2. Here 2 ones are 2 plus multiply by the 1 to this bracket terms, x minus 1. Next is this minus 2 plus 2 cancel, so x minus 1 into x divided by 2 is equal to 49 by 2. Add and take it outside, 50. 48 plus 2 is 50 minus
x divided by 2, 2 minus 1 is 1, so that is the 1 plus x. So 2 ones are 2, 25 are. Okay, so this whole terms take from the right hand side. अब ये वैल्यू को हम राइट में लाएंगे. ओके, तो ये क्या हो जाती, ये प्लस में, ये प्लस में है, ये माइनस आके ये भी इधर प्लस में हो जाती. मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस बिकम्स प्लस, ये इधर आके प्लस हो जाता. x डिवाइडेड बाय 2, x डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू the product of these two, 25 into 49, that is the 1225. Okay, so the denominators are same, just multiply and open the brackets. Denominator same है, इसको एक ही 2 ले सकते. x into x, x square minus x plus x, x into 1 is x, x into x is x square is equal to 1225. सो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल. अब ये दोनों सेम है, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125. सो 2 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125. सो x इज हाउ मच, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35. सो आंसर इज 35. पॉजिटिव नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम पॉजिटिव नंबर ही लेते. सो देयरफॉर द हाउस x इज 35. तो इसका आंसर आएगा हाउस x इज 35. अब जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 इन द एक्सरसाइज 5.4. 5.4 में 5th क्वेश्चन हम देखेंगे, फिगर भी है यहाँ पे, सो उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे. ओके, द क्वेश्चन इज ए स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ द 15 स्टेप्स. फुटबॉल ग्राउंड में एक टेरेस है और उसमें 15 स्टेप्स हैं, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग. और उसका लेंथ कितना है स्टेप्स का, 50 मीटर है. ये 50 है तो ये भी 50 ही होता, 50 मीटर लॉन्ग. एंड बिल्ड ऑफ द सॉलिड कॉन्क्रीट, सॉलिड कॉन्क्रीट से बना हुआ है. ईच स्टेप हैज राइजेस ऑफ द 1/4 मीटर, मतलब एक एक स्टेप का हाइट कितना है, 1/4 मीटर है. एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, मतलब उसका विड्थ कितना है एक एक स्टेप का, 1/2 मीटर है, हाफ मीटर है. कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, मतलब एक टेरेस, ये टेरेस को बनाने के लिए टोटल कॉन्क्रीट कितना यूज है ये हमको पता करना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. हमको यहाँ पे वॉल्यूम पता करना है. ओके, यहाँ पे हिंट भी दिया, ये हम यूज करेंगे. हिंट या क्वेश्चन में हिंट में यहाँ पे क्यूब दिया, क्यूब नहीं आएगा, क्यूब बाद में आता. ओके, सो गिवन length of steps, that is L, is the 50 meter and height of each step is equal to, height के लिए हम लेंगे h, 1/4 मीटर. ओके, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, उसमें मिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट विड्थ, विड्थ हो गया 1/2, 1/4, हाइट हो गया 1/4 एंड द विड्थ इज 1/2. सो breadth of each step, that is the B, is the 1/2 meter. Now for first step, वॉल्यूम, ओके, V1 लेंगे हम, L इंटू B इंटू H1.
H1 क्यों लिए? हर एक में स्टेप यहाँ पे उसका हाइट बढ़ते जा रहा, लेंथ तो सेम रहेगा, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगा। सो L इज द 50, ब्रेड्थ इज 1/2 एंड हाइट इज, फर्स्ट वाला हाइट तो सेम 1/4 आता। सो 2 1s are 2, 25s are, so that is 25 divided by 4, V1. Similarly second स्टेप में आएगा V2, L इंटू B इंटू H2 वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा, एक स्टेप तो हो रहा, सेकेंड स्टेप में डबल हो जा रहा, 2 आ रहे हैं यहाँ पे वैल्यूम, सो हाइट भी डबल हो जा रहा। इसका विड्थ तो सेम आएगा, लेंथ भी सेम आएगा, पर हाइट क्या हो जाएगा, हाइट डबल हो जाएगा। सो किसका डबल होगा, H1 का डबल होगा। H2 इज इक्वल टू 2 इंटू H1, सो कितना होगा 2 इंटू H1 कितना है हमारे पास, H1 ये H1 है, H1 इज 1/4, 2 1s are 2 2s are, so that is equal to 1/2। सो यहाँ पे कितना आएगा 50 इंटू ब्रेड्थ है 1/2 इंटू 1/2, so 2 1s are 2, 25s are, so 25 divided by 2। Similarly third step, for the third step the same thing, for the third step V3 is equal to L इंटू B इंटू H3। H3 क्या होगा 3 इंटू H1, क्यों, यहाँ पे देखो आप वैल्यूम कितने आ रहे, एक स्टेप का 3 टाइम्स आ रहा, 1 2 3 आ रहा। ओके, सो H यहाँ पे चेंज हो जाता, 3 इंटू H1 कितना है, H1 है हमारे पास, H1 इज 1/4, so 1/4, so that is equal to 3/4, so this is the H3। so substituting the values here, 50 into B is 1/2 into 3/4, 2 1s are 2, 25s are, so 25 into 3 divided by 4, this is the V3। okay, so these are the terms, हम ये terms लेते हैं अब। first this is the V2 and this is the V1, volume of the first step, second step and third step, so on up to the nth terms, that is n is the 15। सो हमने V1 V2 V3 हमने फाइंड किया था, वो क्या हो जाता, AP फॉर्म, AP बन जाता। ओके, सो नाउ AP is V1 V2 V3 so on। ओके, V1 क्या था हमारा 25 divided by 4, next one is 25 divided by 2, next is 25 divided by or we can write here 3 divided by 4 so on। अब इसके अनुसार A क्या हो जाएगा 25 divided by 4, D क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस लो या ये दोनों का डिफरेंस लो। ओके, सो 25 इंटू 3/4 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, सो 75 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, इट्स एलसीएम इज 4। ओके, सो 4 4 कैंसिल, 75 ऐसे ही आएगा, 2 1s are 2 2s are, इंटू 2 यहाँ पे हो जाता, दैट इज द 50। It means the finally 25 divided by 4 is the difference। अब क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल कितने स्टेप्स हैं वहाँ पे, स्टेप्स 15 है। अब टोटल वैल्यूम हमको पता करना है, सम ऑफ दीज वैल्यूम्स अप टू द 15th टर्म्स। ओके, V15 यहाँ पे हमको यस 15 पता करना है, यस 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, and we know that
Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. Okay, yes 15 is equal to 15 divided by 2, 2 into a कितना है, a ये है हमारा 25 divided by 4 plus n 15 minus 1 into d. d है हमारा यहाँ पे 25 divided by 4. सो 25 by 4, 25 by 4 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बाहर लेके आ सकते. सो यस 15 is equal to 15 divided by 2 into these two are the common 25 divided by 4 in the bracket 2 plus ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा 14. So 15 into 25 divided by 2 divided by 4 into ये बाहर आके 16 हो जाएगा. So 4 1s are 4 4s are 2 1s are 2 2s are. Now 15 into 2 into 25 means 50. Next multiply these two, 0 as it is, 15 5s are 75. So yes 15. So 75 is what? Meter cube. So volume of terrace is 750 meter cube. This is the solution.